Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Students, in this session we will discuss about the chemical properties of alkyl halides, and specifically we will discuss about the elimination reactions of alkyl halides. Let's start. First of all, what are elimination reactions? Elimination reactions are also termed as beta elimination. बीटा यहाँ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका रीज़न आपको जब आप इसको स्टडी करेंगे इन डिटेल तो आपको पता चलेगा. Okay, by definition, these are the type of reactions in which involves the removal of two atoms of or groups from adjacent carbon atoms of the molecule to form a multiple bond is known as elimination reaction. Basically, in elimination reactions, if we are talking about the elimination reactions of alkyl halides, then during the reactions, two atoms are removed from two adjacent carbons, यानी कि दोनों जो बराबर बराबर में नेबरिंग कार्बन्स जो है उन पर से दो डिफरेंट एटम्स जो है वो ब्रेक होंगे या रिमूव होंगे. एक कार्बन पर से अल्काइल हैलाइड के हैलोजन रिमूव होगा, दूसरे कार्बन पर से हाइड्रोजन रिमूव होगा. एज अ रिजल्ट दोनों कार्बन एटम्स की जो है वो एक एक वैलेंसी वेकेंट हो जाएगी और वो दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन जब बी अल्काइल हैलाइड की होगी तो आपके पास अल्कीन्स जो है वो फॉर्म होंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स. एक्सप्लेनेशन. Those alkyl halides which contain two or more carbon atoms can undergo elimination reactions to form double bond between adjacent atoms. वो alkyl halides जिसमें दो या दो से ज़्यादा कार्बन एटम्स मौजूद हो उनके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शंस पॉसिबल हैं. In these alkyl halides, the carbon atom which is directly bonded to the halogen atom is called alpha carbon, and the carbon atom attached to alpha carbon called the beta carbon, and so on. For example, the carbon atom which is directly bonded to halogen is termed as alpha carbon, and the carbon atom which is neighboring to this or adjacent to this is known as beta carbon, and so on. And one more thing, the hydrogen atoms attached to these carbon atoms are called alpha and बीटा हाइड्रोजन्स रेस्पेक्टिवली. जो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन्स हैं उनको बीटा हाइड्रोजन्स कहेंगे, जो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन्स हैं उनको वी कैन कॉल अल्फा हाइड्रोजन्स. Okay. The hydrogen atom attached to beta carbon is called beta hydrogen. It is slightly acidic in nature due to high electronegativity of halogen atom. Uh, these carbons here, all three, are acidic, more acidic than these hydrogen atoms of alpha carbon, because this carbon is directly attached to halogen, which will make it positive. This carbon will eventually make this carbon positive, and to stabilize the positive charge of beta carbon, the hydrogen atoms withdraw or push their electrons toward the carbon atom. As a result, these hydrogens become partially positive and acidic in nature. When base is allowed to react alkyl halide containing these hydrogens, acidic hydrogens, elimination reaction can proceed. For example, कोई बेस यहाँ पर रिएक्शन करने आ जाए, OH नेगेटिव फॉर सपोज, तो ये इन हाइड्रोजन्स को यहाँ से किसी भी एक हाइड्रोजन को ईजिली एब्स्ट्रैक्ट करवा सकता है, निकलवा सकता है. यहाँ ये रिएक्शन बना हुआ है. फॉर सपोज ये the carbon which is directly attached to halogen here, halogen is bromine here, is alpha carbon, and the carbon adjacent to this carbon is beta carbon. And the hydrogens which are attached to beta carbon are beta hydrogens. All three hydrogens are equivalent here. So, and due to presence of this Br here,
ये Br अपनी तरफ कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ पुश करेगा और इटसेल्फ पॉजिटिव बन जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन आइटम इसको स्टेबलाइज करेंगे और खुद जो है वो पॉजिटिव बन जाएंगे। और कोई अगर बेस जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो आकर इन हाइड्रोजन्स को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है काइंड ऑफ, तो और ये यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करवा सकता है। तो यहाँ आपके पास जो है वो वाटर इस तरह से बन जाएगा, OH NH की एक्सट्रैक्शन के बाद वाटर फॉर्म हो जाएगा। और क्योंकि अब अगर आप देखें तो यहाँ हुआ ये है कि जो बीटा कार्बन है इस पर से आपके पास जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो वेकेंट हो जाएगी और इस कार्बन पर से साइमल्टेनियसली Br रिमूव होगा, तो इसकी भी एक वैलेंसी वेकेंट हो जाएगी, तो दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। तो इस तरह से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई इन दोनों कार्बन में। और Br नेगेटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्योंकि लेकर गया है कार्बन के, इसलिए नेगेटिव बनकर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। Thus, due to attack of base nucleophile, which is nucleophile here because it is negatively charged, but specifically ये OH है और हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करवा रहा है, तो इसलिए हम इसको बेस कह रहे हैं। all those species which can accept a proton are base, तो इसलिए हम इसको specifically base कॉल कर रहे हैं। Otherwise it is a nucleophile. Following changes occur simultaneously. Attack of base and nucleophile से जो changes आते हैं वो क्या क्या हैं? रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एज हैलाइड ऑफ हेलोजन एटम एज हैलाइड आयन, नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन रिमूव होगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन। Types of elimination reaction, there are basically two types of elimination reactions, biomolecular elimination or E2 reaction. Here bi and 2 represents the same thing कि जिस तरह हमने एसिड रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में स्टडी किया था कि बाय मीन्स हेयर कि यहाँ पर आपके पास रिएक्शन तो सिंगल स्टेप में होगा, ट्रांजिशन स्टेट आएगी, लेकिन जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, जो स्लो स्टेप होगा, उसमें दो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी या मौजूद होगी, इसलिए जो रेट एक्सप्रेशन बनेगा स्लो स्टेप से, वहाँ आपके पास उस रेट एक्सप्रेशन में दो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन होगी, इसलिए हम इसको बाय मॉलिक्यूलर या E2 रिएक्शंस कॉल कर रहे हैं। सेकेंड, unimolecular elimination reaction or E1. E1 basically one or unim is for similar reason कि आपके पास यहाँ जो redetermining step है उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जो है वो मौजूद होगी, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर या E1 रिएक्शंस कॉल कर रहे हैं। बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। The type of elimination reaction in which redetermining steps involve participation of both the substrate, that is alkyl halide and attacking nucleophile, is termed as biomolecular or E2 reactions. Mechanism देखते हैं। E2 stands for biomolecular elimination. This is a one-step mechanism, single-step process है, in which abstraction of beta hydrogen and halide ion takes place simultaneously. Following changes will occur simultaneously: removal of beta hydrogen, removal of halogen atom as halide ion, and the formation of double bond between alpha carbon and beta carbon. मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ आपके पास जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो सिंपल, यहाँ तो ये अल्काइल हैलाइड है, ये आपका बेस आ रहा है, ठीक, और यहाँ अगर आप देखें तो डॉटेड लाइन से ये ट्रांजिशन स्टेट है, बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट। तो ये X यहाँ से लीव कर रहा है अल्फ़ा कार्बन से, बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन लीव कर रहा है, और इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए OH आया है, ये OH जो यहाँ था ये इस हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहा है, और साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन होगी इन दो कार्बन के दरमियान में, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो अल्कीन फॉर्म होगा, वाटर रिमूव होगा, ये वाटर है, और ये X जो है वो नेगेटिव फॉर्म में यहाँ इस तरह से अलग हुआ है। Rate of E2 reaction. The rate of E2 reaction depends on the concentration of both the attacking nucleophile OH and the substrate alkyl halide, because both these species are involved in rate determining or slow step of the reaction. Rate लिखेंगे कैसे? Rate of E2 reaction is directly proportional to concentration of
alkyl halide and nucleophile, or basically base. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे, कांस्टेंट ऐड करेंगे विच इज के है, रेट कांस्टेंट, और ये आपके पास रेट एक्सप्रेशन है फाइनल. Unimolecular elimination or even reactions. The type of elimination reaction in which redetermining step involves participation of only substrate, that is alkyl halide, is termed as unimolecular elimination reaction or even reaction. Mechanism यहाँ 2 स्टेप में होगा, डबल आपके पास स्टेप्स हैं इसके अंदर. स्टेप 1 इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोन या यानी कि कार्बोकैटाइन, कार्बन का कैटाइन, कार्बन पॉजिटिव आयन जो है वो पहले जेनरेट होगा. और वो कैसे जनरेट होगा, जब नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन निकल जाए. इन दिस स्टेप अल्काइल हैलाइड आयनाइजेस रिवर्सिबली टू गिव अ पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनियम आयन एंड अ हैलाइड आयन. This is slow and determining step because I have already told you that the bond breaking is always a slow process because stability से unstability की condition की तरफ जा रहे होते हैं. So this RX bond will break reversibly. ये रिवर्सिबल एरो मौजूद है यहाँ पर, अगर आप देखें तो R पॉजिटिव और X नेगेटिव फॉर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल ये जो Br और C बॉन्ड है यानी कि हेलोजन एंड कार्बन बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएगा. एज अ रिजल्ट कार्बन पॉजिटिव और Br नेगेटिव बन जाएगा. कार्बोकैटाइन बन गया जिसे हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, और Br नेगेटिव बनकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा. Formation of product, second step. In this step, the attacking nucleophile base removes the proton from basically beta hydrogen from beta carbon with the simultaneous formation of double bond between alpha carbon and beta carbon. This is fast step of the reaction, fast step because bond formation is always a fast process. Stability चाहिए because so वो कार्बन जो कि अब आपके पास कार्बन कैटायन बन गया था, पॉजिटिव कार्बन बन गया था, ये वो C पॉजिटिव है, उस कार्बन के साथ ये टर्शरी कार्बन था. बेसिकली 3 CH3 ग्रुप्स लगे हुए थे. तीनों CH3 ग्रुप्स इक्विवेलेंट है बिकॉज तीनों डायरेक्टली से ऐसे तो तीनों को में से बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन आप किसी को भी सपोज कर सकते हैं और उस पर मौजूद हाइड्रोजन्स को आप बीटा हाइड्रोजन्स कह सकते हैं. सो ये आपके पास जो है वो बीटा कार्बन हमने इस ये अल्फा है विच वॉज अटैच टू द हेलोजन डायरेक्टली, और अब जो पॉजिटिव बन गया है और इसके साथ जो अटैच है कार्बन बीटा कार्बन है और इसके साथ अटैच हाइड्रोजन्स को हम बीटा हाइड्रोजन्स कह रहे हैं. नेगेटिवली चार्ज बेस या OH यहाँ पर आकर एक हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से और H2O फॉर्म कर लेगा. अब ये कार्बन तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, अगर आप इसको देखें तो इसके 1, 2 and 3 बॉन्ड्स बने हुए. एक बॉन्ड इसका वेकेंट है, वैलेंसी इसकी अभी फॉर्म होगी, और इस कार्बन पर से जब ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो इस कार्बन की भी एक वैलेंसी वेकेंट हो जाएगी. ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे. तो इस तरह से आपके पास अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी. Rate of E2 reactions. The rate of E2 reaction depends only on the concentration of substrate, that is alkyl halide, because determining step जो है वो आपके पास slow step था और slow step में जो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ alkyl halide की concentration मौजूद थी because वहाँ सिर्फ alkyl halide मौजूद था जो फर्स्ट स्टेप था. रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे इस तरह कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन यहाँ मौजूद है. सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो आपके पास E2 मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, जबकि टर्शरी जो है वो E1 के थ्रू करते हैं. सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड गिव बोथ E2 एंड E1 रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. अगर उनको आप पोलर सॉल्वेंट में कैरी करवाएंगे तो वो E1 को फॉलो करेंगे, और अगर आपने E2 मैकेनिज्म करवाना तो you have to provide a non-polar solvent to alkyl halides because non-polar solvent favors E2 reactions in which there is no ionization, और polar solvents favors E1 reaction जिसके अंदर आपके पास ionization होती है. So it was all about elimination reactions. So यहाँ आपका चैप्टर नंबर 8 भी जो है वो कंप्लीट हो गया है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से जो है वो हम रिविजन स्टार्ट करेंगे जितने भी चैप्टर हमने स्टडी कर लिए हैं फिज़िकल क्लासेस में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी, उनके अकॉर्डिंग जो है हम रिविजन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.